that is syllabus. Syllabus has 4 units. First unit is analysis. Analysis के टॉपिक्स आप ध्यान से देखिए. एनालिसिस स्टार्ट होता है सिंपल सेट थ्योरी, फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, सुप्रीमम, इन्फिनिमम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिंक्स, प्लेन लिंक्स. आई थिंक इतना जो पार्ट है ये हम अपना ग्रेजुएशन में कर चुके होते हैं, वरना थोड़ा बहुत ही होता है जो हम आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं. सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. Then comes the higher topics of analysis. Done. These are the higher topics. Improper integral monotone function, Wegg's measure. Then comes the metric spaces. It has questions from topology also. Then we have second part of unit 1 is linear algebra. Easy topics: vector spaces, subspaces, linear dependence, basis, dimension, algebra of matrices, rank, determinant, linear equations, eigenvalue, eigenvector, Cayley-Hamilton theorem. These are the topics of your graduation. And then topics from post graduation are matrix representation of linear transformation, change of basis. So this is unit 1. Unit 1 has mainly analysis, metric spaces, topology, linear algebra. Unit 2 is complex analysis and then algebra. And your first few topics of algebra are clashing with your number theory. Then comes the main group theory, ring theory, and then fields. And here is your topology also. Topology is in section 2. Unit 3 is, you can say, applied mathematics, ordinary differential equations, partial differential equations, numerical analysis. The next is calculus of variations, linear integral equations, and last one is classical mechanics. This is unit 3. Unit 4 is dedicated to statistics, and it has little part of linear programming. At the end, it has linear programming, simplex method, duality, twin theory, and higher. Okay, then so let's discuss this again. So we have 4 units. I will divide unit 1, unit 2, then unit 3, and unit 4. Unit 1 has analysis, and linear algebra. It has complex analysis and algebra. It has differential equations, numerical analysis, calculus of variation, and some other. And it is statistics and operational research, or OR, आप जो भी इसको कहते हो. LPP, linear programming, we can say. This is division of my syllabus. And the second division is section 2 and section 3. You will get 12 questions from here: 8, 8, 12, 18, 12, 12, 18. So total here are 60 questions, 95 marks. And here you have 40 questions,
हेलो सर, Yes. am I audible? Yeah, सर please. यहाँ पे Yes, you are audible. सर यहाँ यहाँ पे मोस्टली नॉर्थ इंडियन होंगे या जो भी इसके बाद क्लास के बाद भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो नॉर्थ से ही होंगे, तो आप हिंदी एंड इंग्लिश भी यूज कर सकते Okay, हैं okay. बोथ। Okay, ठीक है जी। एंड वो ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा सा हाँ हिंदी जी, एंड हाँ जी, इंग्लिश श्योर। का। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से हमें करने हैं 25 और हमारे मार्क्स हैं यहाँ पे 75 मार्क्स। हमें करने हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20। आई एम मेंशनिंग सिर्फ, आई विल टेल इट्स रीजन। 25 क्वेश्चन करने हैं एंड वी हैव 40 क्वेश्चंस। यहाँ पे 60 में से 20 करने हैं। तो आप आराम से सिलेबस को एक बार दोबारा देख के सोच सकते हो कि मैंने किस तरह से तैयारी करनी है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मैंने किसको और ब्रश करना है। आपको कंप्लीट सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग, हम कंप्लीट मार्क्स इसके करते हैं। 40 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ईच, तो 120 नंबर का यहाँ आएगा, 120 मार्क्स का। और हमें करना है सिर्फ 75। यहाँ पे आएगा 60 क्वेश्चन, 4.7 ईच, 5 ईच। और यहाँ पे 3 मार्क्स ईच। 4.7 के हिसाब से 60 क्वेश्चन कितने के बन रहे हैं, कोई बता देगा? 285। और हमें लाने हैं उसमें से मैक्सिमम करने हैं अटेम्प्ट 95। सेक्शन ए जो कि सभी साइंसेस के लिए कॉमन है, सेक्शन 1 और ए, इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, हमें 15 करने हैं और 2 नंबर के हैं। दैट मीन्स हमें 40 नंबर का आएगा और करना है 30 नंबर का। तो टोटल हमें कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है? 120 और 40 160। 160 को करें इसमें ऐड, 445 मार्क्स का पेपर आएगा। करना है हमें 200 नंबर का। ओके, अब मैं जो मेन चीज है आपको दिखा रहा हूँ, कट ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों की कट ऑफ। चलो पहले हम अपने लेटेस्ट वाले की देखें। मेरी स्क्रीन विजिबल है, सभी को दिखाई दे रही है आराम से? ओके, सो मैथमेटिकल साइंसेज, यू आर अनरिजर्व्ड जेआरएफ। अनरिजर्व जेआरएफ की हमारी कट ऑफ क्या है? 49.250। हम इसी को अगर अपना स्टैंडर्ड माने, 49.250 परसेंट, दैट मीन्स 98.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो हमें टोटल पेपर आ रहा है 445 नंबर का। तो अगर 98.5 आ जाते हैं तो हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। अनरिजर्व्ड की आई थिंक, यस, you can see this is the highest marks in this row। तो अगर यस, तो क्या हम इतने कैपेबल बन सकते हैं कि हम इतने मार्क्स ले आए? सो उसी के लिए आज का वेबिनार है। सो ये तो है आपके इसकी एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो देन देयर आर सम बुक्स। ये बुक्स हैं, रियल एनालिसिस की है अपोस्टल,
बट जिनके लिए नया है मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 4th या 5th बुक से स्टार्ट करें, मैथमेटिकल एनालिसिस, एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा। 4th बुक टू स्टार्ट विद, बहुत बढ़िया बुक है। देन आप अपोस्टल की देख सकते हो। मॉडर्न अलजेब्रा में यहाँ पे हर्स्टीन है। न्यूमेरिकल्स अगर आप ज्यादा करना चाहते हो, देन फर्स्ट बुक कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जोसेफ गैलियन, इट इज द बेस्ट बुक। न्यूमेरिकल्स बहुत तादाद में है इसमें। एक और बुक है अलजेब्रा बाय विवेक सहाय एंड विकास बिष्ट, वो भी काफी अच्छी है। देन यस, इन्हीं ऑथर्स की लीनियर अलजेब्रा की भी बुक है, फर्स्ट बुक। देन हॉफमैन एंड कुंज, सेकंड बुक, यस। देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पोनोस्वामी, जेबी कॉनवे, अल्फोर्स, एक और बुक है, वेट अ मिनट, कैन यू टेल मी पुनीत और शैली, आप उस बुक का नाम बता सकते हो? दैट बुक इज फॉलोड हियर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चर्चिल नहीं बेटा, एक और है, उसमें काफी बेसिक से स्टार्ट किया गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सर इज इट जिल? सर जिल और चर्चिल। यस जिल, यस। चर्चिल भी बहुत बढ़िया है, बट जिल एंड शैनन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसमें काफी बेसिक से स्टार्ट किया गया है। देन टोपोलॉजी की मंकर्स है, कुमारा सेन है, और फंक्शनल एनालिसिस वाल्टर रियोडिन, एरविन क्रेजिक्स, ये बुक्स हैं। So this was all about first part. Okay, क्या हम इसमें अब कुछ डिस्कशन कर सकते हैं? किसी का कुछ क्वेश्चन हो? So now coming to the second part of the presentation, हम एक पुराना पेपर देखेंगे just to show wait a minute. So ये पेपर है आपका दिसंबर 2015 में आया था। इसमें से अगर हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखें, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस, इसके मैंने बोला था कि 12 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स वाले, और 18 आएंगे 4.75 मार्क्स वाले। तो ये 21st क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रैंक एंड प्रोडक्ट ओनली। रैंक और प्रोडक्ट की बात ही की गई है इसमें। देन 22nd क्वेश्चन, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात की गई है। 23rd क्वेश्चन, इसमें सिर्फ इन्वर्टिबिलिटी की बात की गई, और इन्वर्टिबिलिटी कहां से आती है? डिटर्मिनेंट से, सिर्फ डिटर्मिनेंट की बात की गई है। 23rd क्वेश्चन को कोई बता सकता है कि हम कैसे करेंगे? 23rd question, S denotes the set of all prime numbers P with the property that this matrix has an inverse. Then किन prime numbers के लिए इसका inverse होगा? Over which Z? इस क्वेश्चन को बताओगे कि हम कैसे सोच सकते हैं? हम इसका पहले डिटर्मिनेंट पता करेंगे, देन डिटर्मिनेंट के जो फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनके लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, बाकी जगह ये इन्वर्टिबल श्योरली होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व के, ओके,
इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर ही होगा। उस फाइनाइट नंबर के कुछ ही प्राइम फैक्टर होंगे, तो बाकी सभी प्राइम नंबर्स के लिए वो इनवर्टिबल होगा ही होगा। तो क्या आप 23rd क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या डायरेक्टली इसका आंसर 4th पार्ट लगा दोगे? कोई बताएगा? अगर कोई आपका फाइनाइट नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके कुछ ही पार्ट्स आएंगे, तो बाकी सभी प्राइम नंबर्स के लिए ये इनवर्टिबल होगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमने ध्यान रखना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है 4th, S इज इनफाइनाइट। बट ये तभी आएगा अगर हमने प्रॉपर रिवीजन की हुई है। 24th क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज और डिटर्मिनेंट का रिलेशन है। नेक्स्ट आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड है। सो यहां तक आपके क्वेश्चन थे लीनियर अलजेब्रा के। नेक्स्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं एनालिसिस के। तो आप अगर नेट वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले सिलेबस के अच्छे से गो थ्रू होइए, देन उसका कोई पुराना पेपर उठा के देखिए कि उसमें आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि हमें 445 मार्क्स का आना है, बट हमने लाने हैं 98.5। और ये तो चलो एक साल के हैं, और सालों का हम डाटा अगर देखें तो यस, ये कट ऑफ है पिछले कुछ सालों की, फ्रॉम 2014 टू 2018। इसमें आप खुद देख सकते हो कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो दिसंबर 2016 में गई थी, अप्रोक्सीमेटली 60%। इसके हिसाब से भी 119 नंबर चाहिए थे। उसके अलावा और कोई कट ऑफ है ही नहीं इससे ज्यादा। दिसंबर 16 में 119 नंबर। अब 119 नंबर टोटल हैं आपके 445, और जब सबसे ज्यादा मार्क्स थे 119 इन दिसंबर 2016, तो आप देख सकते हो ये इसका 25% के लगभग है। सो अपनी बुक्स और अपना सब्जेक्ट अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। नेट की तैयारी करते हुए बीच बीच में पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिए और वहां से अपना करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। विकास, आपने पूछा है कि विच हाँ जी, गुड इवनिंग। आपने पूछा कि विच पार्ट शुड वी इग्नोर। मैं इसके बजाय दूसरे वर्ड्स में बोलूंगा कि विच पार्ट वी शुड लाइक एज गिव अवर बेस्ट। ठीक है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा किसमें करना है वो देखिए। आप अभी जिनकी करंट एमएससी चल रही है वो आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे थोड़ी सी डिफिकल्टी ये आ जाएगी, क्योंकि अभी तो आप अगर करोगे, आप जो करंट एमएससी स्टूडेंट्स हैं या जस्ट पास आउट्स हैं, उनको मैं बोलूंगा कि कुछ भी इग्नोर ना करो। किस पार्ट को और ज्यादा करना है वो आप देखिए कि आपको किस पार्ट में दो चीजें देखनी पड़ेगी कि एक तो किसमें आप बेस्ट दे सकते हो, और दूसरा क्या उसके मार्क्स भी उतने ही बराबर के आ रहे हैं। मैं किसी सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं करना चाहता, स्टिल आई विल डू जस्ट समझाने के लिए। सपोज आप दो सब्जेक्ट्स की बात करते हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रियल एनालिसिस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो रियल एनालिसिस की वेटेज है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से लगभग 3 या 4 गुना ज्यादा है। लीनियर अलजेब्रा की कम से कम 3 गुना ज्यादा है। तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, दूसरा उस सब्जेक्ट की वेटेज क्या है आपके नेट में।
या गेट में, ठीक है, वो देखिए। और जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसके अनसॉल्व्ड जरूर ट्राई कीजिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सो शुड वी रैप आशुतोष, या कुछ और आप रिकमेंड करोगे कि कुछ और डिस्कस किया जाए, कोई और स्पेसिफिक पार्ट? हाँ जी आशुतोष। हाँ जी, तो हम हाँ ये सर, फिनिश करते हैं, एक बार हमारा हो चुका है जैसे। हाँ सर, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई किसी डाउट, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कोई बुक? सर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी वेबसाइट पे, तो मोस्टली जो लिंक थे, हमारा लिंक था जो शेयर्ड था, तो काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा कम ही आ पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ओके ओके, खुद से आप तो एक जितना बार चलो मैं एक्सप्लेन कर ये सकते। दोबारा समझा देता हूँ। जस्ट ये है कि एंड हमारे स्पेशली जो आपने जब क्वेश्चन पैटर्न जो जहाँ से स्टार्ट किया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था सर। ओके, चलो मैं यहाँ से एक बार, ये मैंने लिखा हुआ है, ओके, ये ठीक है। हाँ जी, सो हमारा जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में है एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, सेकंड पार्ट में है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलजेब्रा, एंड यहीं पे है आपकी टोपोलॉजी भी। नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन या बाकी के सारे अप्लाइड टॉपिक्स हैं। फोर्थ में स्टैटिस्टिक्स एंड ओआर व्हिच इज एलईपी, उसको कह सकते हैं, वो है आपका क्यूइंग थ्योरी वगैरह, ओआर सारा इसमें है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपके 20 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने 15 करने हैं, ये सभी के लिए कॉमन होंगे। डन। सेकंड जो सेक्शन है और थर्ड सेक्शन, ये हमारे मैथमेटिक्स के हैं सेक्शंस। 40 क्वेश्चंस आएंगे सेकंड सेक्शन में, उनमें से 12 होंगे यूनिट 1 के, 8 होंगे यूनिट 2 के, 8 यूनिट 3, और लास्ट वाले 12 होंगे यूनिट 4। टोटल 25 करने हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 75 मार्क्स हो गए। इसमें नेगेटिव होते हैं -0.75 मार्क्स, नेगेटिव 1/4। नेक्स्ट है सेक्शन 3, टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, 18 आते हैं आपके एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से। देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी से आते हैं 12, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वगैरह से आते हैं 12, और लास्ट वाले यूनिट 4 स्टैटिस्टिक्स एंड ओआर, उससे आते हैं 18। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्टार्ट सेक्शन 3 से करो, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। जितने मार्क्स देखो 95 मार्क्स तो इसी के ही पास हैं, और टोटल 200 नंबर का होता है। अप्रोक्सीमेटली 50% वेटेज सेक्शन 3 के पास है। बट सेक्शन 3 की एक ही दिक्कत है, इट नीड्स रिवीजन। 4 ऑप्शंस होती हैं, 4 में से एक भी ठीक हो सकती है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए। बट अगर आपके पास किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नॉलेज है तो इसी ने आपके बहुत मार्क्स करने हैं। जो सेक्शन 1 और 2 हैं ये तो मार्क्स को इम्प्रूव करेगा, बट जो बेस मार्क्स बनाने हैं वो सेक्शन 3 ने ही बनाने हैं। इसमें देखो एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप एनालिसिस का डिफिकल्ट पार्ट छोड़ भी दो, 5 क्वेश्चन वहां से सीधे छोड़ दो या 6 सीधे छोड़ दो, तो यहाँ से 12 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स एंड अलजेब्रा टोपोलॉजी, इसमें से आपके 6-7 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, से 6, और यहाँ से सिर्फ 2। यहाँ से मैं कुछ भी कह ही नहीं रहा, आपके 20 क्वेश्चन
इसी से हो गए हैं, दैट मीन्स 95 मार्क्स। सो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए। अब इसमें आपने ओआर या स्टैट पढ़ा होगा, उसके 2-3 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। अगर नहीं भी आते तो हमने यहाँ पे कोई वेटेज नहीं दी है। तो सबसे पहले आप थर्ड सेक्शन को करो। ओके, बट एक इसमें जनरल प्रॉब्लम होती है कि 4 इसमें आपके ऑप्शंस हैं, आपको 3 पे श्योरिटी है, 4th पे श्योरिटी नहीं है। उसपे आप जब आपको पता लग गया कि 4th अभी मेरे बस की बात नहीं है, तो उसको एक बार छोड़ दो। ये ना हो कि आप इसके एक क्वेश्चन पे ही आप काफी टाइम लगा के वेस्ट कर दो। सेकंड थिंग, अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है तो आप एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स से भी किसी क्वेश्चन को सोच सकते हो। आई विल पोज वन क्वेश्चन कि इफ अगर ABC ऐसे मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, so that AB plus B square is equal to C and C is invertible, तो आप का ऑप्शन है A plus B is invertible, B is invertible, A and B both are invertible, at least one of the A or B is invertible। इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे? ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का है और मॉडल टेस्ट पेपर में भी अवेलेबल है। AB plus B square is equal to C है, तो क्या मैं इसको A plus B into B is equal to C लिख सकता हूँ? C इन्वर्टिबल है, तो जो C के फैक्टर्स हैं वो भी इन्वर्टिबल होंगे। ओके, अब किसी मैट्रिक्स के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट थर्ड मैट्रिक्स है तो थर्ड मैट्रिक्स के ये हम फैक्टर्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब है A plus B भी इन्वर्टिबल होना चाहिए और B भी इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो मेरी ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। A का इन्वर्टिबल होना जरूरी है या नहीं? नो, A का इन्वर्टिबल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। A को इवन मैं अगर 0 ले लूंगा तो भी ये काम कर जाएगा B, ठीक है? तो ये गलत है। इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एटलीस्ट वन ऑफ द A और B इज इन्वर्टिबल। मुझे श्योरिटी है कि B इन्वर्टिबल है, A हो या ना हो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये 3 जो हैं इनको मैं काउंटर एग्जांपल या एग्जांपल की हेल्प से भी कर सकता हूं, और ऐसे क्वेश्चन श्योरली आते ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे आते हैं जो आराम से सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी डिवीजन थी। एक बार मैं बुक्स वाला दोबारा खोल के दिखा देता हूं आपको। ये हमारी बुक्स हैं। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जो भी बुक करो उसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस खुद जरूर करो। एक बार अपना बेस्ट जरूर दो हर टॉपिक के लिए।